नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। सर्वोच्च न्यायालय में आज ईडी वर्सेस ममता दीदी या बंगाल सरकार कहें, ये केस हियरिंग में आया। कल ही हमने बता दिया था कि इसमें क्या हो सकता है। कोर्ट ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मना किया और सरकार को नोटिस दिया कि ईडी के कामकाज में दखल क्यों दे रहे हो। ये जब केस जिस बेंच के सामने आया था उसी दिन हमने कहा था कि निर्णय ऐसा ही कुछ आएगा। हमें ताज्जुब इस बात का लगा कि अभी तक ममता बनर्जी की अरेस्ट वारंट क्यों नहीं, अरेस्ट ही क्यों नहीं अनाउंस हुई। वो भी देर सवेर हो जाएगी, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं कि ये सब वाकया हुआ क्यों। लेकिन एक क्लिप आज आई है जो 2 दिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो डिस्कशन हुआ उसकी, और उस क्लिप से पता पड़ता है कि दिल्ली के जो वकील थे हमारे केंद्र सरकार के, जो लॉ ऑफिसर होते हैं, मोदी जी के जो टॉप वकील हैं, उनकी ममता दीदी के वकील ने कैसी भयंकर क्लास लगा दी। और ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं, 2 ट्वीट है, जिस ट्वीट में कुछ खबरें आई हैं, साथ में वीडियो भी है। वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। पहले ट्वीट देखिए। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी स्कूल्स एएसडी Raju for failing to show due dignity to Chief Minister during the ED versus TMC hearing at Calcutta High Court। इसका दूसरा पार्ट दूसरे ट्वीट में है। एंड जो आप देख सकते हैं, एंड द नेक्स्ट टाइम यू वांट टू एज अ लॉ ऑफिसर रेफर टू सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी by her name, give her dignity of calling her a chief minister of the state, a multi-term chief minister। Senior advocate Menka Guruswamy to Additional Solicitor General S.V. Raju during ED versus TMC hearing at High Court। और ये पूरा वीडियो आप सुन लीजिए, अंग्रेजी में वीडियो है। Just filed a petition at the time when it believed that personal data of that political party relevant to the upcoming assembly elections was being housed by their political strategists, not of yesterday or day before, but for the past 6 years. It is a well-founded fear that we had, and that is why we came to court. Then 4, on the issue of the affidavit, the authorization letter for this member of the Trinamool Congress has been filed with our wakalat. Mr. Raju could have asked his instructing lawyers to just check this. The authorization letter has been filed, and that authorization was given by a National Working Committee member of the party. And this person who has signed the affidavit is a member of the party. There is nothing, no great conspiracy here. We all want to have free and fair elections. We find it suspect that our political strategist office was targeted in this way a few months before the assembly elections. I want to be clear. That is the fear here. That money laundering We are not here on the scope or the constitutionality. Don't interrupt me. We are not here on the scope of, please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. I want to be clear here. This is what I'm on. The affidavit has been filed by a member of a political party, authorized. That letter of authorization has been filed with the Wakalatnama. That is on the record. All we are here, if Mr. Raju is going on the record and saying that nothing has been seized, then please record that statement. We then believe that maybe political data was seized from our political strategists, which is indicative to the assembly elections. That is all I'm here. If that statement has been made, our petition may be disposed of in those terms, that nothing has been seized. I'm grateful for my lady's patient hearing. इसमें ममता की वकील जो है
वो एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, वो बाकायदा इस बात की रेफर कर रही है कि जिस ऑफिस पे रेड हुई वो हमारी पार्टी के यानी मेरे कलीग मेरे क्लाइंट यानी टीएमसी की एडवाइजर थे, और ये एडवाइजर आज से नहीं 6 साल से एडवाइजर थे, सोशल मीडिया हैंडल करते थे। उनके पास आने वाले चुनाव को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, ये इसके फाइलें थी, उम्मीदवारों के चयन की फाइलें थी, उनका सर्वे रिपोर्ट था, बहुत सारी चीजें थी। वहां ईडी का इस समय जाना चुनाव के पहले हमें लगा कि ये कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है, जो पूरा प्लानिंग वहां से हाईजैक करना चाहते हैं। इसीलिए ईडी की रेड के खिलाफ हम हाईकोर्ट आए। सवाल था कि ये वकालतनामा किसने साइन किया। उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जिसने वकालतनामा साइन किया वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, पूरी डिटेल दी उन्होंने। उस समय राजू, आपने वीडियो में देखा होगा कि बार बार इंटरवेन कर रहे थे बीच में। तब उन्होंने कहा कि आप अपने आप को म्यूट कीजिए, आप लॉ ऑफिसर हैं। आप जब ममता बनर्जी को आप रेफर करते हैं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कहिएगा। एक राज्य की चीफ मिनिस्टर है, एक टर्म की नहीं 3-3 टर्म की चीफ मिनिस्टर है। थोड़ी डिग्निटी रखिए कोर्ट में। राजू के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। वो बार बार कह रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बहुत पुराना है। रेड का टाइमिंग देखिए। और उसके बाद ईडी ने कोर्ट में कहा, हाईकोर्ट में, तो हमने तो कोई डॉक्यूमेंट वहां से सीज ही नहीं किया, डॉक्यूमेंट लिया ही नहीं। तो हाईकोर्ट ने कहा फिर केस ही नहीं बनता जब लिया ही नहीं तो। लेकिन इसी बीच ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि हमने रेड की और हमारे डॉक्यूमेंट और जो कुछ हमने सीज किया था वो हमारे हाथ से खींच के ले गए ये लोग, हमें काम करने नहीं दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पॉइंट पे हियरिंग करने के बजाय कहा कि एक तो ईडी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, नो एफआईआर अगेंस्ट ईडी। और फिर सरकार को नोटिस दिया कि आप बताओ कि आप क्यों गए थे वहां पे। इससे कल तो ये यहां तक तो ठीक है, कल तो ईडी सीधा पॉलिटिकल पार्टी के घर ही रेड करेगी, बोलेगी हमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस मिला है और आपके जितनी भी स्ट्रेटेजी है, आपका जो डाटा है वो उठा के ले जाएगी। तो इस देश में ईडी निरंकुश है, चुनाव आयोग निरंकुश है। चुनाव आयोग के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, ईडी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो खुले सांड छोड़ दिए हैं मार्केट में, ये लोकतंत्र को कितनी जगह जख्मी करेंगे, सवाल ये देखने का है। हमने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हमें कुछ ज्यादा न्याय की उम्मीद नहीं। हमें डर है कि कहीं राष्ट्रपति शासन न लागू हो जाए बंगाल में, क्योंकि जब तक बंगाल के सरकार की बागडोर केंद्र के हाथ में नहीं होगी तब तक वहां बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। महाराष्ट्र में भी तोड़ फोड़ करके बीजेपी सत्ता में आ गई 2.5 साल बाद, सिर्फ इसीलिए कि आने वाला चुनाव उनको निकालना था। गफलत में रहे। महाराष्ट्र में लोकसभा में झटका लग गया, उसके बाद में विधानसभा में पार्टी ने अपने आप को करेक्ट किया, मतदाताओं की खूब बढ़ोतरी हुई और उसके बाद नतीजे सबके सामने हैं। जब एसआईआर होनी थी, लोगों ने कंप्लेंट की कि ये बोगस मतदान बहुत, फर्जी मतदान बहुत हुआ है, तो इसलिए एसआईआर हो जाए उसके बाद। लेकिन सरकार ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पहले नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, सारे लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे और उसके बाद एसआईआर की जाएगी, क्योंकि ये मतदाता सूची बीजेपी को सूट करती है। ऐसा ही बंगाल में भी यदि उनको सारी चीजें सूट होनी है तो उसके लिए बंगाल में
बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से बीजेपी के हाथ में या केंद्र के हाथ में होना जरूरी है। तो क्या ये पूरा जो मंचन हो रहा है ये वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, ममता को अरेस्ट करने के लिए? क्योंकि ममता अरेस्ट होगी 5-6 महीने, तब तक चुनाव 7-8 महीने वो रहेगी, चुनाव तक रहेगी, चुनाव खत्म होने, जैसे हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव में अंदर रख दिया था, और चुनाव के बाद बाहर निकालेंगे। तब तक तो बीजेपी में सत्ता आ चुकी होगी बंगाल में। लेकिन जिस दृढ़ता से और जिस हिसाब से वकील साहब की क्लास ली ममता के महिला वकील ने, मैं इसी को महिला सशक्तिकरण और स्त्री शक्ति कहता हूं जो आज दिखाई दी। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।